Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Umreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE Mathematics, O Levels Mathematics, Chapter 13, Exercise 13b from Book D3. Question number 4, Exercise 13b. Given that PA and PB are tangents to each of the following circle with center O, find the values of the unknown. स्टूडेंट ये हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी डी करना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी में आप देखें कि ये उसने हमें फिगर दी गई है। इसमें वो कहता है कि वो जॉइंट ए विद बी, जॉइंट ए विद बी एंड दिस एंगल इज जी, दिस एंगल इज जी, दिस एंगल इज एच, this angle is 35 degree. Find G and H. By the property of the symmetric property of the tangent, PA is equal to PB. दोनों टेंजेंट हैं तो ये दोनों की लेंथ इक्वल है। This length is equal to this length. So triangle APB, triangle APB is isosceles triangle. So H is a base angle. H is a base angle. This angle is 35. So this angle is also 35 by the symmetric property of the circle. यानी angle BPO कर लें, BPO is equal to angle APO is equal to 35. रीज़न क्या लिखनी है? Symmetric property of circle. This is a isosceles triangle, तो H plus 35, this full angle 35 plus 35 is equal to 180. Angles sum of triangle 2H plus 70 is equal to 180. 2H is equal to 180 minus 70. H is equal to 110 over 2. H is equal to 2 5s are 10, 2 5s are 10, 55 डिग्री। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। जी का आंसर फाइंड करने के लिए वी नो दैट रेडियस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, रेडियस एंड टेंजेंट, द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो ये फुल एंगल कितने का इक्वल है? 90 डिग्री। तो एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो एंगल AOB किसके इक्वल है? G plus H, G plus H is equal to 90 डिग्री। H is equal to 55, तो G is equal to 90 minus 55। तो 90 में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 35, तो G is equal to 35 डिग्री। आंसर। Exercise 13b, question number 4 E part. Triangle OBP. Triangle OBP is right angle triangle. Right angle triangle. Angle OBP is equal to 90 degree. Radius perpendicular to टेंजेंट। इस प्रॉपर्टी से हमें पता चला दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल।
अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं. फाइंड द एंगल एंड टू लेंथ्स आर गिवन. तो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड होती है? परपेंडिकुलर और बेस. तो tan j इज इक्वल टू 12/5 परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो j इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5. j is equal to tan inverse 12 divided by 5 is equal to 67.38. तो 67.4 डिग्री आंसर. अब स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि ये लेंथ I फाइंड करें. वी नो दैट दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. लेंथ OP अगर हम फाइंड करें तो दिस लेंथ इज इक्वल टू रेडियस 5. तो OP किससे फाइंड करेंगे? बाय पैथागोरस थ्योरम. एंड OP इज द हाइपोटेन्यूज. तो OP होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर बाय पैथागोरस थ्योरम. (25 plus 144 169). तो OP होल स्क्वायर टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. तो OP इज इक्वल टू 13. क्लियर? सेंटीमीटर. OP इज इक्वल टू 13. तो हमने I फाइंड करना है. I इज इक्वल टू OP माइनस 5. तो इज इक्वल टू 13 माइनस 5. तो इज इक्वल टू 8. I is equal to 8 centimeter. In this question, K is the radius of the circle and the length of the tangent is 15. Or this line is also a radius of circle. The length of this line is given 7 centimeter. तो OP की total length क्या हो जाएगी? K plus 7. तो length of three sides given है. In terms of K, तो by Pythagoras theorem we can find the value of K. Because angle OBP is 90 degree, by the third property of the circle, radius is perpendicular to the tangent. तो angle OBP is equal to 90 degree, radius perpendicular to tangent. तो OP whole square is equal to K square plus 15 whole square by Pythagoras theorem. OP is equal to K plus 7 whole square. K plus 7 whole square is equal to K square plus 15 square 225. अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे. K square plus 49 plus 14K is equal to K square plus 225. K स्क्वायर को इक्वेशन के दोनों तरफ K स्क्वायर है पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये कट हो जाएगा. 14K इज इक्वल टू 225 माइनस 49 176. तो K इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 14. K is equal to 12.6 सेंटीमीटर. अब एंगल L फाइंड करना है. L को हम कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर फाइंड कर सकते हैं. हम tan वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं. tan L डिग्री इज इक्वल टू 15/12.6.
तो L डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय 12.6. tan इनवर्स 15 divided by 12.6. L is equal to 49.9 डिग्री. तो L डिग्री को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे 50.0. अगर वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कहेगा तो आपने 15.0 लिखना है. तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक का आंसर हो गया. क्लियर? 50 नहीं लिखना. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.